This conference will now be recorded. So now I think this is clear to everyone. Any doubt in this? How we are going to store our programs, or actually how other type of variables that we declare, how these are being allocated memory in different stacks, in different heap area, in data sections and text area. Yes. Yes, sir. आगे चले बेटा. Okay. So now today we will discuss about the very important thing, and it is a type of base. Whenever we will discuss about the in the next semester we will discuss about the data structure part. So that will become the base of this data structure. That is the dynamic memory allocation. So till now what we have done, we have just allocated the memories in a static fashion. Meaning whenever we want to make an array, we just need to define the size of that array. It means that whenever we are defining the size of some variable, it means that in a very static way I'm saying that okay, this is the amount of memory I need from you. So that was the static way I'm going to allocate the memories. But now in most of the situation, and dynamic programming, not dynamic programming, dynamic programming is not a correct word to say, but yeah, in most of the situation we need to allocate the memory dynamically on the basis of the requirement on the execution of my program. I just need to create the memory dynamically and not in a static fashion. So as you can see that before start of a program, we sometimes do not know about the actual space requirement. Thus, we use the dynamic memory allocation. Okay. So what are the ways in order to do that? The first way is using this particular function malloc. You should use this particular function malloc. So can any one of you can read this? The way that we have used, how we are going to read the pointers? Can anybody can read this? How we are going to read this? Is malloc is a pointer or malloc is a function here? The function. Function. The rules that we have discussed in 3 days before or 4 days before, can you read it? Malloc is a function which takes what? सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? This is size underscore t. So don't go with that as of now. Just understood. Okay, it is some data type. Okay. So malloc is a function which is going to take a value n of having the data type size underscore t, and it is going to return what? Void star pointer. Yes or no? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ओके सो नाउ वेरी मच इम्पोर्टेंट, इसी के ऊपर जो है हम पूरा अपना 20-25 मिनट लगाने वाले इन सारी चीजों पे, मेमोरी एलोकेशन के ऊपर. सो नाउ कैसे करेंगे उसमें सर ये जो मैलॉक है सर, ये कोई वर्ड है, मतलब सर कोई नाम ऐसा हमने अपने आप से दिया है? ये हमने लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर ऑलरेडी जो है stdlib, इस लाइब्रेरी फंक्शन को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जब भी आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के साथ प्ले करोगे. जैसे आपको printf फंक्शन यूज करना था तो कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड करते थे? stdio.h. stdio.h तो इंक्लूड करना ही करना है. printf यूज नहीं करना है तो मत करो उसको, कोई जरूरत नहीं है. लेकिन आपको क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में printf यूज करना था तो हमने stdio लाइब्रेरी हमें यूज करनी पड़ेगी. इसी प्रकार इसी तरह से in the same manner we are going to use this particular stdlib.h as a header file before if I want to allocate the memory dynamically. अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर ये क्या हमने लिखा है? नहीं, हमने नहीं लिखा है, ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है ये. इसी तरह से लिखोगे जैसे लिखा हुआ है. ओके. यस सर. इसकी डेफिनेशन कहाँ पे? इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है stdlib.h हेडर फाइल के अंदर. कि कैसे काम करेगा ये सारा का सारा यहाँ पे डिफाइन. ओके. सो नाउ so malloc is a function. Malloc is a malloc. We call it malloc, right? Otherwise it is malloc. Okay. So this is a malloc is a function which is going to take some value n. Let us suppose I will give 10, and this is of size underscore t. What does it mean? It means that whatever the value that you are giving to this, any data type which is unsigned and whose size is at least 16 bits, जो भी बेटा आप दे रहे हो वो at least जो है वो नंबर दो जो कम से कम जो है 16 बिट्स का हो.
बात समझ में आई? yes sir, कितनी बात समझ में आई? आप देखो नेक्स्ट मूव कर जाओ। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ से यू सेंड 10, आपने 10 डाला यहाँ पे, आपने इस तरह से लिख दिया इसको। तो इसका क्या मीनिंग समझे हम? इट मीन्स दैट यू वांट टू क्रिएट अ मेमोरी ऑफ 10 बाइट्स। 10 बाइट्स की आपको मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। कितना मेमोरी साइज आप डिमांड कर रहे हो? ठीक है। So malloc 10 will return a pointer of type void, that is void star pointer. It will return the base address of allocated memory of 10 bytes. So if you wish to store this returned address into some other pointer of other type, then you can easily typecast it. Why you can typecast it? Because malloc is returning a void star pointer. Meaning सर हमने ये बोल दिया कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट थी 10 बाइट्स की, तो 10 बाइट्स की मेमोरी आपको मिल चुकी है malloc फंक्शन के द्वारा। और कैसे मिली है, इसने क्या रिटर्न किया है? ये बेस एड्रेस, अगर इसका बेस एड्रेस हमारा कोई भी @100 मान लो इसको, तो किस टाइप का बेटा ये वॉइड स्टार का। तो हमें रिटर्न में क्या मिला है? हमें रिटर्न में ये बॉक्स नहीं मिला है, हमें रिटर्न में क्या मिला है? एक पॉइंटर मिला है। वो पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है? किस मेमोरी पे? 10 बाइट्स की किसी मेमोरी पे। बात समझ में आ रही है? yes sir, बताओ गरिमा। यस वंस यस सर, यस सर। एक ब्लॉक मिल गया है। हमारी इतनी बड़ी मेमोरी एक ब्लॉक मिल गया है। कितना साइज है इसका? सर 10 बाइट्स का साइज मिल गया है। ठीक है। और कैसे मिलेगा? मुझे कैसे पता चला 10 बाइट्स का? मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे तो केवल एक पॉइंटर मिलेगा जो इसको पॉइंट कर रहा होगा, और वो पॉइंट इस एड्रेस पे कितनी पॉइंट कर रहा होगा? 100 लोकेशन पे 10 बाइट के साइज पे। ओके, तो ठीक है। हमें जो पॉइंटर मिला उसका टाइप क्या है? वॉइड स्टार। अब आप बोलते हो कि सर ये क्योंकि वॉइड स्टार टाइप का है, वॉइड स्टार टाइप का होने का मतलब हुआ हम इसको किसी भी टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। यस yes सर। sir, तो आपने बोला कि सर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इंट स्टार पीडी स्टार मैंने एक डिक्लेयर करके रखा हुआ है, इस टाइप का है बेटा पॉइंटर, इंटीजर को पॉइंट करेगा। तो हमने रिटर्न में क्या लिया है? वॉइड स्टार। तो क्या हमें इसको इस तरह से लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? yes sir, यस सर। Yes or no? Okay. So Yes, I sir. think with this declaration, we know that yes, we have one pointer that is pointing to this particular base address of this 10 byte memory size. Okay. Okay. सर हम that's इसको it. डायरेक्ट So, ऐसे very डिक्लेयर कर सकते हैं सर, ऐसे ही सर फर्स्ट स्टेप में जैसे हमने वोल्ट हाँ? स्टार करके डिक्लेयर किया सर, इसको वोल्ट स्टार करके डिक्लेयर किया, हाँ। तो हम यहीं से सर इसको इंट स्टार करके मैलोक डिक्लेयर कर सकते थे। बेटा बाय डिफॉल्ट इसकी हमने डिक्लेयर नहीं किया, ये इसकी डेफिनेशन है इसकी मैलोक की। मैलोक की जैसे हमने बोला है तो इंटरनल फंक्शन है सर इसका। इंटरनल फंक्शन है मतलब इसका डिक्लेरेशन जो है वॉइड स्टार टाइप का है। ओके ओके सर, ओके तो फिर हम हाँ, अभी सर ये पॉइंटर सर इंट स्टार होगा। किया है सर, तो जो पॉइंटर का जो साइज हाँ? होगा 4 बाइट्स का होगा ना सर, जो यहाँ पे 10 बाइट्स लेने हैं जहाँ पे। नहीं बेटा, पॉइंटर के साइज से हमें कोई लेना नहीं है। पॉइंटर तो केवल एड्रेस ही होल्ड करता है। अब जितना भी इस एड्रेस का होगा वो होगा। ये एड्रेस जो 100 पे जो लोकेशन पे जो लोकेट कर रहा है ये पॉइंटर, यहाँ पे जो मेमोरी है ना, एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी स्पेस बन गया 10 बाइट का, बस इतना समझो। सर जो 10 बाइट का है वो 4 बाइट का नहीं होगा अगर हम इंट स्टार कर रहे हैं तो? नहीं बेटा, मैंने तो अभी ये बोला नहीं है ना, अभी तो इस बात पे आए नहीं है। इस पे भी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है हमें इस तरह से डिक्लेरेशन करने में। ओके सर। अगर इस तरह से हम डिक्लेयर कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? हाँ, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। अगर हमें ये इज इट अ गुड प्रैक्टिस टू राइट दिस और नॉट, ये गुड प्रैक्टिस है कि नहीं, इस बारे में आएंगे। अभी रुक जाओ, पहले वन बाय वन समझ के जाओ कि ठीक है 10 लिख देंगे तो हो जाएगा। सर मैलोक में एक पैरामीटर बेटा हाँ वो भी बताएंगे। एक सेकंड अभी चलने दो, पहले ये तो डिस्कस करो कि ठीक है ये सिंपल डिक्लेयर। हमने तो केवल डेफिनेशन से चले, आपने एन कहा तो हमने एन पुट कर दिया, बस हमने ये किया। जैसे जैसे बोलते जा रहे वैसे वैसे किया। हाँ सर यहाँ पे जो आपने बात बोलो, क्या बोल रहे हो वंश? यस वंश बोलो।
Am I audible? सर Yes, Yes, sir. sir. कनेक्शन वीक है, नेटवर्क कनेक्शन। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? पूछो भाई। सर शायद उसका नेटवर्क कनेक्शन वीक है। Yes, sir. Okay. Audio is Anyways, also. so एक बारी पहले पर इसको कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं। ओके चलो ठीक है। सो सिंपल मीनिंग ये हुआ कि सर 10 आपने उसमें अगर पुटअप कर दिया, इस तरह से आपने पुटअप कर दिया, तो इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हमने जो है, हमारा डिमांड क्या है, 10 बाइट्स की हमें एक मेमोरी साइज की रिक्वायरमेंट है, और 10 बाइट्स के साइज की रिक्वायरमेंट है, मीनिंग मेमोरी में कहीं ये ब्लॉक हमारा बन चुका होगा। ब्लॉक कैसे बना होगा, कोई बता सकता है कैसे बना होगा ये ब्लॉक? बताओ बेटा। यस यस एनीवन? क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। हमने ये बोला कि ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया, 10 लिख दिया इधर इसके अंदर, यहाँ पे, तो ये 10 बाइट्स का जो है ब्लॉक बन गया होगा। कैसे बना होगा ये 10 बाइट का ब्लॉक? ये क्या है, 10 का ही बना होगा? हमें 10 रिटर्न में मिला है कि बड़ा ब्लॉक मिला होगा हमें? कोई जब मैलोक फंक्शन काम कैसे करता है वो देखेंगे। मैलोक फंक्शन की जब हमने कॉल करी, किसने करी बेटा? आपने करी ना। तो आप एक यूजर हो, तो हमारा देखो कॉल्स हमेशा जो है, देखो दो तरह की, पहले इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस चीज को। हम जब भी फंक्शंस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन को कॉल कर लो। एक बात होती है फंक्शन को कॉल कर लो, एंड सेकंड बात होती है हमारी सिस्टम को कॉल कर लो, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग, और एक बोलते हैं हम सिस्टम फंक्शन कॉल। तो एक तो सिस्टम कॉल होगी और एक होगी फंक्शन कॉल। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? दोनों के अंदर डिफरेंस ऐसे समझो। Okay, let me give this example first. कर्नल मोड, जिसको हम सिस्टम कॉल भी बोलते हैं। कर्नल के बाद क्या लिखा आपने? सिस्टम कॉल बेटा, कर्नल मोड के अंदर सिस्टम कॉल। देखो दो तरह की कॉल्स होती है, पहले इसको समझो। जब भी जो है, जैसे नॉर्मल कॉल मैंने एक मेलोक फंक्शन को मैंने कॉल किया, ठीक है, इस तरह से मैंने किया मेलोक, और यहाँ पे लिखा 10। तो इसका मतलब कि किसने कॉल किया? ये किसने कॉल किया? आपने कॉल किया। It means that whenever a particular normal function is being called by the program, it is a normal function call. So such type of function calls, when being called in normal fashion or normal function, such functions call is always in the user mode. उसको हम बोलते हैं यूजर मोड में हम उसको कॉल कर रहे हैं। ये सिस्टम कॉल क्या हुई होगी? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सिस्टम कॉल का। सिस्टम कॉल्स क्या होती है बेटा? सिस्टम कॉल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम डिपेंड करती है, और ये कॉल्स यहाँ तो मेलोक को कौन कॉल कर रहा था? वंश कॉल कर रहा था, गरिमा कॉल कर रही थी। इट मींस दैट यू एज ए यूजर इज कॉलिंग दीज कॉल्स इन अ नॉर्मल फैशन, सो दीज आर नॉर्मल फंक्शन कॉल। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी फंक्शन को कॉल करता है, कौन कॉल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी फंक्शन को कॉल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल। बात समझ में आ रही है इतनी? दो चीजों में डिफरेंस। यस Yes, sir. एक तो आप हो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को कॉल करता है बेटा, किसी फंक्शन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसने एक सिस्टम कॉल परफॉर्म की है, सिस्टम कॉल परफॉर्म की है। जब आप यूजर मोड में एक प्रोग्राम बनाते हो और अलग अलग तरह के फंक्शंस को कॉल करने की कोशिश करते हो, तो वो प्रोग्राम किस मोड में चलता है? यूजर मोड में चलता है। यूजर मोड, और बोल दो यूजर फंक्शन कॉल हुई है। तो देखो होता क्या है एक्चुअली, मेलोक का पूरा वर्किंग समझते हैं, फिर बड़ा इजी हो जाएगा सब। सर एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम कॉल में ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, तो मतलब सर वो यूजर के इंस्ट्रक्शंस में तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता होगा ना सर? मतलब वो अपने आप कॉल करता है मतलब?
हाँ बता रहे हैं ना, सारा का सारा जो है खेल प्रोसेसेस का है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, उसको रन करते हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस बनता है। अब प्रोसेस जब क्रिएट हो जाता है, प्रोसेस बनने का मीनिंग क्या है, जो अभी अभी हमने ये पढ़ा था, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, ये स्टैक एरिया, एलोकेशन एरिया। प्रोसेस जो है किसी भी प्रोग्राम की कोरस्पॉन्डिंग क्रिएट होता है और मेमोरी के अंदर एक लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलोकेट कर देता है। बात समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर फैशन में, ये पूरा का पूरा एरिया किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एक ये प्रोसेस है। एक प्रोसेस जिसका नाम P1 है, उसने ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ एरिया मेमोरी में जो है इकट्ठा करके रख लिया है और इसको जो है अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके रख दिया है उस प्रोग्राम के कोरस्पॉन्डिंग। उस प्रोग्राम में जब भी कोई वो क्या देखेगा, लोकल वेरिएबल, तो वो स्टैक एक्टिवेशन एरिया में डाल देगा इसको। जब भी कोई स्टैटिक या डायनेमिक देखेगा तो डाटा सेक्शन के अंदर डाल देगा। इतनी बात समझ में आ रही है? प्रोसेस क्या है ओवरऑल, छोटा छोटा ले लो इसका आइडिया, अदरवाइज दैट विल बी डिटेल्ड डिस्कशन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? सिस्टम कॉल में हाँ? आता है, मतलब सर ये मेमोरी एलोकेट जो कर रहा है सर, ये सिस्टम कॉल में आता है मतलब। हाँ सुनो मेरी बात, अभी पहले एक बारी बात सुनते जाओ। तो दो चीजें हुई, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम डिटेल में, क्योंकि दैट इज अगर हम जो अपने एरिया से हट जाएंगे फिर जो काम चल रहा है। दो चीजें होती है, प्रोग्राम जब भी बनता है उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन एलोकेट करता है, प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एलोकेट करता है एक प्रोसेस को। उस प्रोसेस के काफी सारे हिस्से होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, छोड़ो क्या हिस्से होते हैं, लेकिन मेमोरी जो है इस तरह से एलोकेट हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के कोरस्पॉन्डिंग। नाउ जब भी कोई मेरा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा, उस तरह के फंक्शन कॉलिंग को मैं क्या बोलूंगा, एक सिस्टम कॉल हुई। जब भी यूजर मोड में कोई फंक्शन कॉल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फंक्शन कॉल है, दैट इज इन द यूजर मोड। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस यस सर। अब Yes, एक sir. FTBR एक सिस्टम कॉल है, किसके अंदर है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आई थिंक यू नो ऑल दिस थिंग्स, लिनक्स एंड यूनिक्स, राइट? लिनक्स एंड यूनिक्स एंड देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स का एग्जांपल लेते हैं या लिनक्स का लेते हैं, तो FTBR एक हमारा क्या है, सिस्टम कॉल है। वो सिस्टम कॉल क्या करेगी, जब भी मैं ST डायरेक्टली, जब आप सिस्टम प्रोग्रामिंग कभी आपको मौका मिलेगा सीखने का, तो अब अगर आप इस सिस्टम कॉल को ऐसे लिखोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, यूनिक्स के अंदर जाके, तो ये इसका काम क्या है, अब आप कहाँ पे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम इज डायरेक्टली कॉलिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज द सिस्टम कॉल। और ये सिस्टम कॉल क्या करेगी बेटा, एक जो है आपको 2 बाइट का मेमोरी निकाल के दे देगी आउट ऑफ पूल ऑफ द होल मेमोरी। बहुत बड़ी मेमोरी में से एक 2 बाइट का आपका लिए स्पेस रिजर्व कर देगी। इतनी बात समझ में आ रही है? सर एक बार और Yes, sir. प्लीज बता दीजिए। Yes, sir. देखो यूनिक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल ले रहे हैं। HTBR एक क्या है, एक तरह का फंक्शन है। कहाँ पे है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफाइन है। कहाँ पे डिफाइन है, कोई प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लिनक्स जब डालते हो, लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहां पे लिखा हुआ है। इतना बात समझ में आ रही है? ये प्रोग्राम क्या Yes, करता है, sir. जब भी आप इसको कॉल करोगे, अरे भाई जब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही खुद का प्रोग्राम है, किसके पास क्षमता है, किसके पास पावर इसको कॉल करने की, मेरे पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। जब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई ऐसा फंक्शन कॉल करने की पावर है, तो उसको हम क्या बोलूंगा, उसको मैं सिस्टम कॉल करूंगा। सर मेरे ऑपरेटिंग पास खुद की सिस्टम पावर, हमारे बोलने पर ही कॉल करेगा ना, ये सर हाँ? ऑटोमेटिक कॉल कर देगा। सर ऑपरेटिंग सिस्टम भी तभी अरे- कॉल करेगा ना जब हम उसको बोलेंगे कॉल करने के लिए। एडवांस में जो है अगर चीजें करोगे, आपने पहले सुन लिया मैंने क्या बोला, अभी तो मैं HTTPR के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा बताया कौन किसको कॉल कर रहा है। ये सर आपने बोला ना सर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करेगा ना इस फंक्शन को, तो सर मैं उस बात पे बोल रहा हूँ सर, कॉल तो मतलब हम ही करते होंगे ना। हाँ भाई हम ही करेंगे, लेकिन अभी बताऊंगा ना कैसे करेंगे, पहले सुना करो पूरा ना। जब मैं बोलता हूँ पहले एक बार सुन लिया करो, पहले क्वेश्चन सुन लिया करो, तब मैं बोलूंगा क्वेश्चन लो आप, तब बोला करो, ठीक है? ठीक है। HTTPR क्या है, हमारा एक सिस्टम कॉल है। सिस्टम कॉल क्यों है, पर्टिकुलर फंक्शन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफाइन है।
तो जब भी ये कॉल होगा, कॉलिंग होने का मतलब क्या है, अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ओके, सो इट विल कॉल बी एज अ सिस्टम कॉल। जब भी इसकी डेफिनेशन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर HTTPR की, जैसे अगर मैं इसके अंदर कोई पैरामीटर डाल के अगर इसको कॉल करता हूँ, तो इसका फंक्शनलिटी कैसी है कि हमारे आउट ऑफ पूल ऑफ मेमोरी ये हमें 2 बाइट निकाल के दे देगा। ठीक है, ये हुई मेरी सिस्टम कॉल। अब ये जो सिस्टम कॉल यहाँ पे मैंने यूनिक्स के लिए बताई, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम टू सिस्टम, ये आपकी कॉल जो है अलग अलग हो सकती है, अलग अलग फंक्शंस नेम हो सकते हैं इनके। यूनिक्स के केस में यहाँ पे क्या है, STDBR है। दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है, विंडोज के केस में जो ये STDBR फंक्शन ना होके हो सकता है कोई एक ABC फंक्शन हो, तो वो ABC फंक्शन विंडोज के लिए क्या होगा, एक सिस्टम कॉल होगी कि नहीं होगी? यस सर। ठीक है, तो अब होता क्या है, क्योंकि मेरा malloc फंक्शन जो है एक हमारी C लाइब्रेरी के अंदर हमने दे दिया है उसको, लेकिन इंटरनली ये काम कैसे करता है? देखो, जब भी काम करना होता है वो तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। जब मेमोरी के साथ प्ले कर रहा है, कोई सिस्टम कॉल होगी तभी मुझे मेमोरी लोकेट हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि जब भी मैं malloc एज ए यूजर मोड के अंदर, जब भी मैं कोई इस तरह से काम बोलूंगा, एक फंक्शन कॉल करूंगा malloc को, तो ये क्या है, यूजर मोड, मीनिंग आपने कॉल किया। ये फर्दर किसको कॉल करेगा बेटा, एक सिस्टम कॉल को। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। और ये जब ये सिस्टम कॉल को करेगा, तो अब हमारे पास वर्किंग किसकी आ गई, अब हम यूजर मोड से स्विच कहां कर गए? दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ स्विचिंग। अब मैं क्यों बता रहा हूं, आई डोंट नो, because it will be more detailed discussed in this operating system part, but as of now yes we are discussing malloc, तो थोड़ा सा ले लेते हैं। तो this is what we call as a switching from the user mode to the kernel mode। इसको हम कर्नल मोड भी बोलते हैं, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम मोड भी बोलते हैं, बट यूजुअली हम इसको कर्नल मोड की जो है लैंग्वेज में जानते हैं इसको। तो यूजर मोड से जो है हम क्या हो गए, स्विच हो गए कहां पे, कर्नल मोड के अंदर। और कर्नल मोड में हमने क्या कर लिया, आके सिस्टम कॉल को एक्टिवेट कर लिया। और विंडोज के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सिस्टम कॉल, फॉर एग्जांपल ABC एक ऐसी सिस्टम कॉल है जो मेमोरी क्रिएट करने की क्षमता रखती है, तो ABC से क्या होगा, मेरा 10 बाइट की मेरी मेमोरी बन जाएगी। और रिटर्न ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा मुझे क्या, एक पॉइंटर। कौन सा पॉइंटर, वॉइड स्टार टाइप का। बात समझ में आई malloc की वर्किंग? यस सर। यस सर। यस सर। सर ये हर फंक्शन के केस में ऐसा होता है, जैसे हम printf को कॉल करते हैं तब भी पहले वो सिस्टम कॉल पे जाएगा, या खाली malloc के केस में होगा? ये आपका जो है डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट से। malloc हो गया, ठीक है, इस तरह के फंक्शंस में है, लेकिन हर फंक्शंस में नहीं है। मोस्ट ऑफ द हम जो काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द काम कैसे करते हैं, मोस्ट ऑफ द काम तो यूजर मोड में करते हैं, अपने खुद के फंक्शन बनाते हैं, खुद की कॉलिंग करते हैं। लेकिन यस, जहां पे आपको कोई ऐसा फंक्शन की जरूरत पड़ जाए जो आपने खुद नहीं लिखा है, और आपने नहीं लिखा, किसी हेडर फाइल के अंदर है, 2 केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। हेडर फाइल में आपने खुद में इतने डिटेल में डिस्कशन कर दी उसकी, हेडर फाइल के अंदर आपने पूरा लॉजिक दे दिया, एक पॉइंट हुआ। अब हेडर फाइल के अंदर आपने रख दिया कि नहीं भाई मैं लॉजिक तो दे रहा हूँ, हेडर फाइल के अंदर मैंने क्या डाल दिया, STDBR, ये वाले कॉल कर दी। तो अब तो मुझे इंटरेक्ट होना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। यस और नो? यस सर। सर जैसे मैथ्स वाले जो फंक्शन होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है या ऐसे होते हैं, तो वो भी तो हम जैसे इंक्लूड करते हैं वो लाइब्रेरी, तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि सिस्टम कॉल होती है? मैथ.h लाइब्रेरी इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है कि उसके लिए जो है कर्नल पे स्विच करना पड़ जाए, क्योंकि वहां पे मेमोरी कोई एलोकेशन नहीं हो रही है हमारी। वहां पे मैथ.h एक ऐसी हेडर फाइल है। अब मैं आपको बोलूं कि हमें जो हेडर फाइल यूज नहीं करनी मैथ.h, आप क्या एक ऐसा जनरलाइज प्रोग्राम खुद का बना सकते हो जो कोई भी जो है मैथमेटिकल जो ऑपरेशन करना हो, केवल आप उस फंक्शन को कॉल करो और सारा हो जाएगा। तो वो हेडर फाइल जो हमने अपनी हेडर फाइल मैथ.h के अंदर वो सारी की सारी फंक्शनलिटीज रखी हुई है, वहां पे जो है सिस्टम कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। यस समझ में आ रही है बात? सर, मतलब बस बेसिकली ये है ना कि जब मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं उसके लिए ये होता है। आई एम नॉट कंक्रीटली सेइंग कि मेमोरी के अंदर ही होगा, या देयर आर नंबर ऑफ अदर सिस्टम्स कॉल्स बेटा।
बहुत सारे, आप गूगल पे अगर गूगल पे सर्च करो या टेक्स्ट बुक में देखो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स कॉल्स अवेलेबल, अलग अलग सिस्टम्स कॉल का अलग अलग फंक्शनैलिटी है। आप यूजर मोड में रहते हुए उनको किस तरह से कॉल कराना है ये दैट डिपेंड्स ऑन यू। फॉर एग्जांपल इस केस में हमें पता था कि ठीक है मुझे एक मेमोरी साइज चाहिए था, तो मैं एक मैलोक फंक्शन बना के रख दिया। मैलोक फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे दे दी बेटा मैंने, लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर दे दी। अब लाइब्रेरी फंक्शन को अगर आप खोल के देखोगे ना इसकी, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक ऐसी सिस्टम कॉल जनरेट हुई है, मीनिंग एक ऐसा सिस्टम कॉल को मैंने कॉल किया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखी हुई है। यस यस सर। तो लाइब्रेरी बनाने वालों ने क्या किया होगा, लाइब्रेरी बनाने वाले ये किया होगा, अरे भाई STBR जो मेरे पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ गई है, तो मैं उसको दोबारा से क्यों लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली क्यों ना ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल कर रहा हूं उसको। यस और नो? यस सर। हाँ, तो ये हुआ हमारा स्विचिंग बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल मोड्स, राइट। और बेटा एक पॉइंट नोट कर लो इसमें, ये स्विचिंग जो होती है ना बड़ी कॉस्टली होती है, बड़ी एक्सपेंसिव होती है हमारे लिए। क्या से एक्सपेंसिव होती है सर, बार बार अगर आप ये करोगे ना, यूजर मोड से कर्नल, यूजर मोड से कर्नल, कर्नल से यूजर, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है प्रोग्राम की, मीनिंग एग्जीक्यूशन जो है आपका, रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम्ड होंगे आपके प्रोग्राम के अंदर। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू स्विच फ्रीक्वेंटली, टू स्विच बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल मोड। बात समझ में आ रही है? बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम को तंग करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और भी बहुत काम है। आप यही करते रहोगे, आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बना दिया है कि सारी की सारी सिस्टम कॉल उसी में इन्वॉल्व हो गई, तो बाकी काम क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको और भी तो काम है। यस और नो? यस सर। तो ये स्विचिंग करना आपके लिए बहुत काफी कॉस्टली है, मीनिंग प्रोग्राम के लिए वेरी एक्सपेंसिव है। अगर आपको इस तरह से लॉजिक देते हो कि दैट यू नीड टू स्विच इट अगेन एंड अगेन, तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए यहाँ पे, सर अगर ये इतनी एक्सपेंसिव है तो अब मुझे तो जो है प्रोग्राम के अंदर बार बार, कभी तो मैं 2 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करूंगा, कभी मैं 4 बाइट के एलोकेट करूंगा डायनेमिकली, तो मुझे तो बार बार एमएलओ फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो अगर मुझे बार बार मेलोक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यूजर मोड से कर्नल मोड में मुझे बार बार स्विच करना पड़ेगा, तो ये तो सर बड़ा एक्सपेंसिव काम हो गया। तो इससे तो बेटर यही है कि मैं डायनेमिकली एलोकेट करूंगी ना सर, स्टैटिक से ही काम चला लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। मेलोक फंक्शन सेकंड वर्किंग समझते हैं मेलोक की। मेलोक फंक्शन जो है सेकंड वे में कैसे काम करता है, एक तो ये बात हुई, जब भी मेरा मेलोक फंक्शन कॉल होता है, वो ठीक एक बार स्विच हो गया हमारा, कहां से, यूजर से कर्नल मोड के अंदर। उसने कोई सिस्टम कॉल कर ली एबीसी, और एबीसी कॉल के अंदर हमने एक डिमांड क्या थी आपकी, 10 बाइट्स थी। यस और नो? Sir. यस सर। कितने मिलने चाहिए आपके हिसाब से, आपके हिसाब से कितने रिटर्न होने चाहिए? 10 सर। 10 ही आनी होनी चाहिए, sir. चाहिए। 10 आनी चाहिए, बट प्लीज नोट इट डाउन दैट यस, whenever you demand certain amount of number, certain amount of memory byte in form of bytes from the malloc, for example here 10, the return, whatever this is being returned from the system code, it is not of 10 bytes. ये 10 bytes का नहीं होता बेटा। कितने bytes का रिटर्न होता है? malloc फंक्शन जब भी कॉल होता है, जो डिमांड की गई थी उतने बाइट्स का ना होके मुझे malloc फंक्शन क्या लेके आता है, एक बंच लेके आता है, एक बंच ऑफ मेमोरी लेके आता है। कहां से लेके आता है? सिस्टम कॉल से, राइट। एक बड़ा स्पेस लेके आता है, जितना डिमांड करी गई थी उससे बड़ा डिमांड लेके आता है। और अब जब मेरे पास ये मेलोक के पास आ गया है ये बंच पूरा, अब क्या करूंगा मैं, इसका जितना आपने लिखा हुआ है उसमें से एक हिस्सा निकाल के आपको प्रोवाइड कर देता है, लो भाई 10 बाइट्स। क्या फायदा होगा इससे वंस? सर इससे हमारा ये फायदा है कि हमारी बची हुई मेमोरी शायद बच जाएगी, हम उसे बेच नहीं जाएगी वो। इससे बेटा फायदा ये होगा, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। यस नमन, यस नमन, गुड। नमन बोल रहा कि सर अभी हमने देखा कि यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विचिंग बड़ी एक्सपेंसिव है। आप एक बार कॉल कर लिया करो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, ये बंच ऑफ मेमोरी, और ये बंच ऑफ मेमोरी बोलने का मतलब ये नहीं है कि कोई छोटी सी मेमोरी, बड़ा साइज लेके आता है ये।
और वो इतना बड़ा साइज होता है कि दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम। अभी आपको फिलहाल जो है प्रोग्राम रन करते हुए 10 बाइट्स की जरूरत थी, तो आपको 10 बाइट्स उसमें से हिस्सा काट के आपको दे दिया गया है। फर्दर आपको अगर आपके प्रोग्राम जब मैनिपुलेशन हो रही है वेरिएबल्स के अंदर, जब उसमें और रिक्वायरमेंट्स मेरी सेटअप होगी, तो इसी हिस्से में से मैं जो है जितनी रिक्वायरमेंट मुझे चाहिएगी इसमें से दोबारा काट के दे दूंगा। तो मुझे जो है दोबारा से सिस्टम कॉल जनरेट नहीं करनी पड़ी। जब तक मेरे पास ये हिस्सा है, बंच है, मैं काट के देता रहूंगा, मैं काट के इसमें से देता रहूंगा। लेकिन जब भी मेरा वर्किंग पूरी हो जाती है, तो ये जो मैंने हिस्सा दिया था इसको मैं क्या कर दूंगा बेटा, रिलीज कर दूंगा। इसको मैं क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। फ्री करने का मतलब जो पहले एलोकेटेड था दोबारा से ये हमारा यहाँ पे फ्री हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर रिलीज का मतलब फिर से समझाना एक बार। एक सेकंड, इसको रब कैसे करेंगे, एक सेकंड रुको, ऑप्शन नहीं है क्या? सेकंड जरूर रेड पेन के पास में इरेजर सी लग रही थी। सर सबसे फर्स्ट वाली इरेजर था सर, वो जहाँ पे मार्कर साइज थे। ये वाला, ये वो सर बेटा रिलीज करने का क्या मतलब हुआ? रिलीज करने का मतलब ये हुआ कि सर अभी अभी आपने बोला, इसको रब करो यार, डिलीट से होगा क्या? नहीं बेटा इस तरह हैंग कर गया। एक सेकंड रुको। ओके प्लीज प्लीज माइंड इट, नहीं चल रहा था कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। रिलीज करने का मतलब है जब भी आपको मेमोरी की जरूरत आपका फिनिश हो गया है तो उसको फिर क्या करो, जब भी आपको मेमोरी की जरूरत नहीं है बेटा तो आप क्या करोगे, इसको फ्री कर दो। फ्री करने का मतलब क्या है, जो आपने पहले एलोकेशन दी थी अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके तो क्या क्या लिखोगे इसके लिए? वन मोमेंट, थोड़ा सा हैंग कर जाएगी। तो साइड पे एक और ड्रॉ कर लीजिए। अरे साइड में तो ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन ये पेन भी तो नहीं आ रहा ना इसमें सेलेक्ट होकर। एक सेकंड रुको। सर वैसे मतलब जैसे आपने बताया कि अगर हमने 10 बाइट का मांगा है तो वो बंच ऑफ मेमोरी लेकर आता है, तो अगर मैंने बोला कि मुझे 6 बाइट का चाहिए तो फिर मतलब सर वो भी तो 10 बाइट वाला काम कर ही देगा ना, क्योंकि वो भी बंच ऑफ मेमोरी लेकर आएगा। हाँ गरिमा बिल्कुल कर देगा, लेकिन आपको 6 चाहिए तो ठीक है, हो सकता है कि आपको 6 की रिक्वायरमेंट थी। एक सेकंड, मुझे पेन चूज करना है। 6 की रिक्वायरमेंट थी आपको, आपको 6 की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जो है उसने कितना दिया है आपको बंच में, 10 दिया है, उसमें से 6 काट के आपको दे देगा, बाकी जो 4 बचा वो रखा रहेगा वहीं पे। कल को जो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे तो बाकी जो फिर आपको बोला कि सर 2 और चाहिए मुझे अभी, तो 2 उसी में से दे दो। ठीक है, कॉमन सेंस तो यही बोलती है ना, ऐसे ही करना चाहिए, है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो सर जब आप जो है उसमें से 2 दे देता तो उस टाइम पे दोबारा सिस्टम कॉल नहीं करनी पड़ेगी? नहीं बेटा नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल भी, यही तो फायदा हुआ। नहीं यार ये एक सेकंड दो, वन मिनट इसको मैं बंद करता हूँ दोबारा। जैसे कि सर हमने 10 बाइट्स का हमने कॉल किया, हमको बंच ऑफ मेमोरी मिल रही है सर, तो मतलब 10 बाइट्स की हमको मेमोरी फिर बार बार कॉल करेंगे तो मिलती जाएगी, मतलब कोई भी साइज की मिलती जाएगी? नहीं बेटा क्या बोल रहे हो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? 10 बाइट्स की सर जैसे कि हमने अब आपने बताया कि हमने 10 बाइट्स का कॉल किया तो हमको बंच ऑफ मेमोरी मिली, तो इस बंच ऑफ मेमोरी से हम सर सिर्फ 10 बाइट्स का निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी साइज का निकाल सकते हैं 20-40 बाइट्स का? निकाल नहीं सकते बेटा, मेलो 10 लिखोगे तो 10 का ही मिलेगा।
आपको ये लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आपने तो malloc 10 लिखा था तो 10 ही तो मिलना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली में जो है हमें पूरा ब्लॉक मिलता है इस तरह से, और वो ब्लॉक 10 का नहीं होता, बिगर साइज का होता है, बिगर देन दिस पर्टिकुलर दैट यू हैव डिमांडेड। क्योंकि जो प्रोग्राम जो लिखा गया है malloc के कोरस्पॉन्डिंग वो इस तरह से लिखा गया है क्योंकि वो जानते हैं कि आपको जो रिक्वायरमेंट, आपने malloc फंक्शन यूज किया है तो पूरा पक्का विश्वास उनको ये है कि आप जो है क्या करने वाले हो, यहाँ पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने वाले हो। फिलहाल आपने तो 10 की मान के चले थे, लेकिन उन्होंने आपको कितनी दी है, ग्रेटर देन 10, फॉर एग्जाम्पल 50 की दे दी। तो एक्सक्यूज मी सर, लेकिन पता लगा, आपने, हाँ एक्सक्यूज मी सर जो ये बंच दिया मतलब मेमोरीज का सर malloc फंक्शन ने, तो हम पता कर सकते हैं सर मतलब इसने कितनी मेमोरी प्रोवाइड की, हमें कितने बाइट्स दी? ये पूरा बंच यस सर। बेटा, मतलब सर आई नीड टू सी फंक्शन, मुझे फंक्शन देखना पड़ेगा कि कितना पूरा का पूरा एलोकेशन हुई है। ये मैं स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगा अभी। आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, आई मीनिंग रीड दिस कि हाउ मच मेमोरी, यस व्हाट वी कैन नो कि आपने जो डिमांड की थी वो इतनी आई है कि नहीं आई है, वो साइज ऑफ से पता चल जाएगा आपको। मतलब सर अगर जैसे कि हमने अभी 10 निकाल लिया, अब दोबारा अगर कॉल करेंगे तो 40 में से देगा वो हमको, 50 - 10 40, तो मतलब 40 बचा जो बचा मेमोरी। 40 अवेलेबल है, 40 में से दे देगा, और देनी भी चाहिए इसे, अदरवाइज अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या करोगे, सिस्टम कॉल करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 40 बच गया, 40 में से आपने बोला कि सर यहाँ पे ना ऐसा करो 30 निकाल लो, इससे निकाल ले, कितना बच गया, 10 बच गया इधर, ठीक है। अब 10 में से जो है फिर आपने कुछ अब देखो सिनेरियो समझो, अब आपने बोला कि सर 10 बची हुई है, ओके लेट मी डू वन मोर सिनेरियो हियर। अब आपने बोला कि सर अब मुझे जो 10 की जरूरत नहीं है, जो मैंने पहले कंज्यूम की थी, फ्री कर दो उसको, तो क्या होना चाहिए, दिस इज फ्री, दिस इज कंज्यूम, यस ओके, यस सर। फॉर एग्जांपल दिस इज, and initially this is 10 MB or 10 bytes, now this is free, तो अब टोटल कितनी होगी बेटा फ्री हमारे पास, 20 bytes। यस सर। फ्री की बात Yes. समझ नहीं आई सर, फ्री मतलब वो तो एलोकेट हो चुकी है ना। नहीं बेटा फ्री कर दिया ना आपने, फ्री फ्री कैसे करते हैं, अभी फंक्शन पढ़ेंगे, फ्री करते हैं, फ्री लिख के और जो पॉइंटर है उसको पॉइंट कर दो, ओके सर, तो फ्री हो जाती है मेरे पास। तो अभी खैर मैं डिस्कस करूंगा इसको, इसमें आ गए तो एनीवेज, तो अच्छा सर, क्या हमने हुआ सिर्फ हमारे यहाँ फ्री पे फ्री नहीं होती करी है। सर, जैसे कि हमने फ्री नहीं हाँ। करी, हमने 10 बाइट्स बचा है और हमने अगर 20 बाइट्स का कॉल किया तो मतलब वो एरर दिखाएगा कि वो ऐड ऑन कर देगा अपने आप से। नहीं सुनो, अभी दो केसेस है यहाँ पे, वही वाले केस बता रहा हूँ। 10 यहाँ से पहले फ्री वाला केस समझो, 10 यहाँ से आगे, 10 यहाँ से आगे, 20 बन गई, लेकिन आपकी डिमांड क्या है 30 की, तो क्या करेगा बेटा बताओ, क्या करेगा। सर ऐड ऑन कर देगा वापस से मतलब अब ये एड ऑन नहीं करेगा बेटा, एड ऑन नहीं होगा, एड ऑन नहीं करेगा, क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से एक फ्रेश सिस्टम कॉल जनरेट होगी, जो एक फ्रेश ब्लॉक लेके आएगी दैट इज बिगर देन 30। तो साफ बोलोगे सर इसका क्या हुआ फिर, दिस बिकम्स होल्स, इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं होल्स। ये क्या हो गया बेटा, होल्स जनरेट हो गए आपकी मेमोरी के, बात समझ में आ मतलब रही है। ऐसा नहीं होता कि जितना उस पे है पहले उसे यूज कर लो और बाकी का अलग से बंच में से ले ले, ऐसे नहीं होता। हम उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन डिमांड तो मेरी 30 की है ना, अवेलेबिलिटी तो मेरी 20 की है। यस सर, तो वो पहला पूरा केस। 30 से नया सिस्टम। ओके सर। तो एक्सक्यूज मी तो पहला सर, केस, मतलब जो आपने बंच लिया था सर, अब ये तो 30 वाला जिसमें दो बीच वाले सर आपने ले ली 20 बाइट्स और साइड में दोनों जगह 10 बच गई सर, तो सर जैसे मतलब ये बंच आया सर, ये तो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना। मान लो अगर उसने आगे वाली 10 बाइट्स मतलब फर्स्ट और सेकंड बॉक्स उठाया सर इस बंच का सर, तो आगे अगर हम दोबारा 20 कॉल की तो पिछले वाले को उठा सकते हैं, और जैसे आपने शो किया कि दो बीच वाले उठाए उसने 20 के लिए, तो हम उसे दोबारा 20 के कॉल करने के लिए नया बंच बुलाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा ना सर उसने कहाँ से उठाया कहाँ से नहीं, ये इसका पता चल जाएगा। don't insert the mathematics here, probability, no probability, just अब ये मैच करना है कि यस
यहाँ पे जो है डिमांड 30 की थी, स्पेस है 20 का, मेरे पास सफिशिएंट नहीं है, ओनली वन, बस दिस इज सिंपल कंसेप्ट। सेकंड केस नंबर सेकंड इज, सर डिमांड इज 20, अवेलेबिलिटी इज 20, कैन आई टेक इट, कैन आई टेक इट और नॉट? लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है हमारे पास। तो मतलब आधी मेमोरी Yes, कहीं sir, it और is not- खाली है, आधी मेमोरी कहीं और खाली है। हाँ सर, ये कैसे करोगे सर? डेटा हमारा 20 में स्टोर होना है, तो वहां पे बोल रहे कि हमें बोल रहे कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा सर, कैसे करोगे? उसी के लिए बेटा एक नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। क्या बोलते हैं? लिंक्ड लिस्ट। वो हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, इसलिए बेस बना रहे हैं। क्या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बता दिया सर? ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस नहीं है सर, डेटा तो मुझे कॉन्टिग्यूअसली स्टोर करना था ना, 20 बाइट्स की डिमांड थी, लेकिन अब 20 बाइट्स है, लेकिन सर कॉन्टिग्यूअस नहीं है। तो सर मैलोक करेगा तो मैलोक की एलोकेशन इतना तो पक्का है कि मैलोक से ही होगा, लेकिन कैसे करूं? तो ये जो नॉर्मल मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ, नॉर्मल जो मैं फैशन, ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं बोलता हूँ अभी क्योंकि आपको पता नहीं है डेटा स्ट्रक्चर किस सेंस में है। जो नॉर्मल ये सिनेरियो है इसमें तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि सर 20 बाइट्स जो मेरी स्टोरेज है अलग अलग में कैसे होगी सर? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए आपको एक नया नया चैप्टर करना पड़ेगा। उस चैप्टर का नाम क्या है? लिंक लिस्ट। क्या है वो चैप्टर? किस तरह का चैप्टर है वो? कुछ इस तरह का चैप्टर है सर, अगर जहां जहां मेरी मेमोरीज है, जहां जहां अवेलेबिलिटी है, वहां वहां से उठा लो और उनको आपस में पॉइंट कर दो, यस और नो, ताकि वो although they are not continuous but we are supposed to make them continuous, yes or no? चलो डिटेल Yes, sir. उसमें मत जाओ, उसमें मत जाओ। अब ये डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट मत करो यार, वो फिर सब मिक्स हो जाएगा सारा ना। अभी इतना नहीं, सर। समझ में आ रहा है मेलोक और लेफ्ट कैसे काम कर रहा है? यस यस सर। चलो एक Yes, समरी sir. दे दो, कोई कौन देगा समरी? चलो जल्दी बताओ बेटा, अगले और भी काम और बहुत सारी चीजें करनी है। क्या करना है सर? सर एक मैलोक समरी एक बताओ। फंक्शन, सर मैलोक एक फंक्शन है जिसे हम मतलब डायनामिकली अगर हमें मेमोरी एलोकेट करनी है तो उसके लिए यूज करते हैं। और वो काम ऐसे करता है कि हम पहले यूजर मोड में हैं और उसके लिए मतलब मेमोरी एलोकेट करने के लिए वो सिस्टम कॉल करता है, फिर उससे वापस हमें जो वो पॉइंटर रिटर्न करता है, तो वो फिर बीच में मतलब स्विचिंग इन्वॉल्व होती है। और अगर हमने मान लो 10 बाइट्स की मेमोरी बोला उसे, लेकिन वो 10 बाइट से ज्यादा की मेमोरी लेकर आता है, ताकि हम अगर हमें आगे भी यूज मतलब पड़ा हमें, तो हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट। बट अब आपको लग रहा होगा सर चलो ठीक है, ये कहानी तो समझ में आई अंदर कुछ, लेकिन ये कोई एफिशिएंट तरीका है क्या ये मैलोक 10 लिखने का? क्या कोई अच्छी बात है इस तरह से लिखोगे इस चीज को? देखो इस पे भी स्टोरी समझते हैं, देखो समझो इस चीज को। लेट मी गिव दिस एग्जांपल। अब देखो बेटा, ये हमने लाइन लिखी, इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? हमने एक पॉइंटर बनाया जो पॉइंट करेगा किसी इंटीजर, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो जहां भी पॉइंट करे वहां पे इंटीजर वैल्यूज ले। ओके, आपके सिस्टम में फिलहाल मान के चल रहा हूं आपका इंटीजर जो लेता है 2 बाइट्स लेता है, ये मेरी एजम्पशन है अभी। आपने फिर लिखा ptr इक्वल्स टू int स्टार, ये क्यों किया? टाइप कास्टिंग क्यों करी? जल्दी बताओ, टाइप कास्टिंग क्यों करी इधर मैलोक के साथ? सर क्योंकि वो void टाइप मैलोक वाइड था ना सर, void होता है सर। वेरी गुड। तो सर हमने टाइप कास्टिंग कर दी सर, और इसको पॉइंटर को सर इस सिनेरियो हमने ऐसे बना दिया, यस और नो? यस सर। यहाँ पे हमने कोई वैल्यू स्टोर कर 300 सर, हमने कैसे करी होगी सर? पीटीआर में कहा, ये पीटीआर जो हमने किया है यहाँ पे इसके अंदर क्या करा दो? 300 स्टोर करा दो। ओके, करा देते हैं। इसके अंदर जो हमने 300 करा दिया, 300 अपने आप में 2 बाइट्स में स्टोर करने की क्षमता रखता है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या ये गुड मेथड है कि नहीं है ये बताओ? क्या इस तरह से करना चाहिए आपको? डिमांड, मेमोरी की डिमांड इस तरह से करनी चाहिए आपको?
बताओ, खुद बताओ, लॉजिकली सोचो पहले फिर आंसर करेंगे। लिखा भी होगा आंसर। साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ करनी चाहिए। हाँ, नो नो नो, एलोप तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। कहाँ एलोप और रिलोप कहाँ? दोबारा दो दो बताओ, और कुछ बताओ, दूसरा बताओ। लॉजिकली सोचो बेटा, कॉमन सेंस लगाओ। इधर क्या है सर, 2 बाइट मांगी थी, 2 बाइट दे दी होगी, पॉइंटर में कुछ ऐसा डाटा डाल दिया, और मेरे सिस्टम में 2 बाइट इंटीजर ले रहा था, तो मैंने 2 बाइट का डेटा रख दिया, क्या प्रॉब्लम है? सर हो बेटा ये सकता भी है तो लॉस, सोचो। ये टाइप कास्टिंग करने से थोड़ा मेमोरी लॉस हो जाए। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, साइज ये ऑफ भी तो सोचो ऑपरेटर जरा। इज साइज ऑफ अब फंक्शन। हाँ, यस, near to that. Once is saying sir, see one thing, अब आपने पॉइंटर जो है हमारा इंटीजर टाइप का बनाया है, मीनिंग वो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, यहाँ पे जो डेटा है ना वो सर 2 बाइट का आना चाहिए, ये समझ लो। यस सर। लेकिन भाई ये चीज बताओ मुझे, अब आपको तो लगता है कि ऐसा आना चाहिए, लेकिन अगर आपने ये लिख दिया, तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया 2, और आपके सिस्टम में इंटीजर का साइज निकला 4 बाइट, तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो आपने डाल दिया कोई डेटा 4 बाइट्स का इसके अंदर, और साइज था केवल 2 बाइट्स, तो क्या हो गया, डेटा का लॉस हो गया। यस और नो? यस सर। यस सर। तो क्या ये गुड प्रैक्टिस है इस तरह से डिमांड करने की मेमोरी? अच्छी प्रैक्टिस हुई है कोई? नो तो सर। क्या करना चाहिए बेटा? करना ये चाहिए साइज सर, ये जो 2 आप लिखो, आप इसको ऐसे ना लिख के, आप सर इसको ऐसे लिखो जैसे आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, साइज ऑफ इंट, ओके, एंड दिस इज टाइप कास्टिंग, एंड दिस इज डन। यस और नो बेटा? यस सर। बताओ गरिमा, नमन, सिद्धार्थ। सर एक बार रिपीट करना। हम बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपने इनिशियली क्या किया था, 2 बाइट्स की डिमांड करी थी, तो लो 2 बाइट्स आ गए निकल के, दिस इज एरिया इज 2 बाइट्स। अब आपने इसमें एक पॉइंटर बना दिया, पॉइंट कर लिया इसको यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोल रहे थे सर यहाँ पे पीटीआर की एक्सपेक्टेशन क्या है, यहाँ पे जो वैल्यूज आए किस टाइप की आए, इंटीजर। इंटीजर टाइप की। यस सर। इंटीजर का साइज क्या होता है, इंटीजर का साइज क्या होता है, इंटीजर का साइज सर अभी अभी तो आपने बोला कि 2 बाइट्स है, तो 2 बाइट का डेटा आना चाहिए, ठीक है, मैंने लिख दिया इसके अंदर 300 डाल दिया, अरे भाई 300 2 बाइट्स में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कल को ये सेम चीज लिख के अगर आप अपने सिस्टम में इसको रन कराने की कोशिश करोगे, और वहां पे आपने चेक किया कि मेरे सिस्टम के अंदर तो इंटीजर का साइज कितना है, 4 बाइट्स का है, इंटीजर साइज कितना है, 4 बाइट्स का साइज, यस सर। तो अब क्या होगा इसमें, तो प्रॉब्लम आ जाएगी नहीं आ जाएगी? यस प्रॉब्लम क्यों सर। आ जाएगी, साइज आपने तो बनाया 2 बाइट का, और आप अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कह रहे हो कि सर क्योंकि इंटीजर टाइप का है ना, तो मैं तो यहाँ पे डेटा ऐसा फिल करूंगा जो 4 बाइट लेता हो, तो आपने जब डालने की कोशिश करी तो ये डेटा यहाँ तो मेमोरी में तो आ गया, और बाकी का जो डेटा बचा ओवरफ्लो कर गया, लॉस कर गए। यस सर। यस और नो? यस तो सर। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो अभी तक हम जितनी कहानी पढ़ी वो सारे की सारी गलत पढ़ी हमने, हमने तो वो सब कुछ गड़बड़ कर दिया मामला, ऐसे नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, मैलोक को साइज ऑफ इंट के साथ इस तरह से डिक्लेयर करो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। यस और नो? यस सर। आगे बढ़िए। यस सर। सो दिस इज सेम थिंग वी हैव रिटन हियर। अब जो है दोबारा से जो है हम अपने इस पे आ जाते हैं, ये सब हमने डिस्कशन वही किया हुआ है जो भी बताया। अब हम सेकंड पॉइंट वेयर वन मोमेंट,
अब हम आ जाते हैं कि हमारे कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले तरीका हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया कि मैलोक से हम जो है एलोकेशन कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो हमें कैसे करना है, साइज ऑफ करके करना है। तो दिस इज वन वे। अब जो हमने ये भी डिस्कशन कर लिया कि क्योंकि वर्ड स्टार का वो टाइप का होता है, तो हम इसको किसी भी टाइप का, किसी भी पॉइंटर के किसी भी वे में हम इसको डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंट स्टार में किया और यहाँ पे कैसे किया है, कैर स्टार में। यस और नो? यस सर। सर ओके, नाउ स्टैंडर्ड वे हमने देख लिया कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। दिस इज द स्टैंडर्ड वे। ओके, यस सर। यस सर। ओके बेटा। Now what more? Yeah. So this is what already all these things are discussed. Okay. So I have already put all these things. Yeah, important thing now. Yes, yes. So now see this example. Now this is PTR. Now this is malloc of 10 size. So yes, 10 is allocated, meaning 1 byte each. We have this, and this is something like this. So this scenario we have created. Now you need to answer what will be PTR plus plus. Yes, beta. 102 सर हम इंट का साइज या जल्दी 2 बताओ। बाइट्स में मान रहे हैं। 102 Everybody, yes or no? सर हम इंट का साइज 2 बाइट्स मान रहे हैं। यस सर। हाँ बेटा, 2 बाइट ले यस रहे सर। हैं। हाँ तो सर 102 ही यस आएगा। सर 102। ओके, वेरी गुड। मैच करते जाओ, जहां कंफ्यूजन हो बोलते जाओ। देन 102 के बाद फिर हमने प्लस प्लस कर दिया 104। हाँ यस सर। यस सर। सर। यस सर। यस सर। कैरेक्टर में अगर टाइप कास्ट किया तो क्या करोगे, कर लोगे? यस सर, वो +1 करते रहेंगे। यस सर। सर वो +1 1 हो बाइट। यहाँ पे कैसे लगी यार? यस सर, वो +1 होता जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हमने देखा मैलोक की फंक्शनलिटीज के बारे में कि मैलोक क्या चीज है। अब हम जल्दी से जो है बस सिंपल सा कर लेते हैं, छोटा सा काम रह गया। दूसरा जो टाइप है हमारा वो है सी एलोक। एक्सक्यूज मी सी सर। एलोक बोलते हैं, पर एक्सक्यूज जल्दी मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर हम मेलोक के अंदर साइज ऑफ कैर नहीं लिख सकते हैं ना? साइज ऑफ बिल्कुल ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? जब आप उसको कैरेक्टर पे पॉइंट करा रहे तो कैरेक्टर का साइज तो लिखोगे बेटा, वो किसका लिखोगे? सर वो लिखा था ना मिनिमम ऑफ 16 बिट्स लेता है, मतलब उसका क्या मतलब था फिर? 16 बिट्स कितने बिट्स बन गए बेटा, कितना बाइट्स बन गए? 2 बाइट्स। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हो? वी कैन राइट इट साइज ऑफ कैर CHAR। so this becomes अगर 2 बाइट का है तो this is size of char 8 bit. Yes, this should not be written beta. Please check it when you compile whether it is taking or not. This one, check this one. It should not take एक्सक्यूज this. मी सर। Okay, who asked this question? Yes, once or who? यस सर, मैंने पूछा था वंश। Yes, once check it once whether it is taking or not, because the standard definition is saying it should be at least of this particular 16 bits. Okay, we'll Okay. discuss. If it is not the case, then we'll discuss. But before that, please check it. Okay. ओके सर। Okay. So now, एक्सक्यूज yes. सर, जैसे फर्स्ट मेथड में हमने 10 करके करा था, तो इस मेथड में अगर करना है तो 5 into साइज ऑफ इंट करना पड़ेगा। हाँ, yes, बेटा. That depends on your this ना integer size अगर तो 2 लेकिन bytes का अगर है हमें तो 5. अगर हमें पता नहीं है कि कितने साइज, क्या साइज है इंट का, तो फिर कैसे करेंगे? देखो साइज ऑफ इंट तो आप निकाल लोगे ना. साइज ऑफ इंट तो आपको पता ही होगा. साइज अच्छा, ऑफ ठीक है इंट सर। जैसे ही लिखोगे तो ओके सर। अब देखो कैलोग के बारे में देखो
इसका छोटा, इसका बिल्कुल सेम ही है, कैलोक और मेलोक दोनों एक ही चीज है, पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, कैलोक की डेफिनेशन थोड़ी सी इस तरह से काम करती है, साइज अंडरस्कोर टी, मीनिंग एटलीस्ट 16 बिट्स होनी चाहिए, जो भी आप एन डालोगे वो एटलीस्ट 16 बिट्स का हो। ओके यस और सर। यहाँ पे Yes, सेकंड sir. आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, साइज अंडरस्कोर टी एंड साइज। तो क्या है इसका मतलब, व्हाट इज द साइज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का साइज कितना होगा और कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है और हर एलिमेंट का साइज 2 बाइट का। ओके ये कैलोक किस तरह से काम करेगा। बाकी वर्ड स्टार इसकी रिटर्न टाइप रहेगी, सेम जो है वर्ड स्टार का पॉइंटर में रिटर्न करेगा, और दिस इज हाउ इट विल वर्क। देखो तो कैरेक्टर मतलब जेड अगर लिया है, मैलोक में लिखना होता है तो बस मैलोक 10 लिखते हैं और यहाँ पे 5,2 लिखा है, ऐसे ही है ना? हाँ 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 तो ठीक है। मतलब अब अगर देखो मैं इसको समझो, इसमें जेड सर अगर मैं इसमें 3 नंबर एंटर करवाना चाहूँ तो वो तीसरे के 3 लिए नहीं हो पाएंगे, 6 बाइट अपने आप ले लेगा? नहीं 3 एंटर करा ही नहीं पाओगे। डिक्लेरेशन क्या बोल रही है, डिक्लेरेशन तो ये बोल रही है ना 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। बट सर इसमें ऐसा नहीं होता कि बंच आता है, बंच ऑफ मेमोरी आता है? किसके अंदर, कैलोक के अंदर? यस सर। नहीं कैलोक का तो बेटा बंच की बात करी नहीं ना, अभी तो हम केवल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इसकी, कि इसमें 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, पहला आर्ग्यूमेंट और सेकंड आर्ग्यूमेंट। आप कह रहे थे ना सर बाकी सब तो सेम ही होता है। अरे वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मेमोरी एलोकेशन जिस तरह से जैसे हमने टाइप कास्टिंग वगैरह करी, वो उस तरह का सेम ही होगा। यस बंच ऑफ मेमोरीज ही आएगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसी तरह से ही आएगा। देखो इसका एग्जांपल देखो जरा, ये हमने क्या किया हुआ है इधर, यहाँ पे हमने पॉइंटर बनाया है ptr int स्टार टाइप का कैलोक 5 और 2 5 और 2, तो क्या लिखा है इसका 5 एलिमेंट चाहिए 1 2 3 4 5 ईच ऑफ 2 बाइट्स। ओके तो ये तो ऐसे पॉइंट कर दिया, दूसरा ऐसे भी पॉइंट कर सकते हो, यस और नो यस बताओ। सर। यस पॉइंटर p प्लस प्लस कर लो, जल्दी जल्दी फिनिश करो यार, इसको आज फिनिश कर लेते हैं, बाकी फिर देखेंगे बाद में। ptr प्लस प्लस 102, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, जेड sir. प्लस प्लस जेड प्लस प्लस यस सर। यस सर। यस सर। डिफरेंस क्या है बेटा दोनों में, कौन सा यूज करना है, मेलोक करना है कि कैलोक करना है, ठीक है ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा करना है। पर एक छोटा सा डिफरेंस ये है, देखो सर मेलॉट क्या होता है सर, वो तो समझ आ जाए जिस तरह हम यूज करते हैं, लेकिन सर फंक्शनैलिटी मतलब क्या फायदा हुआ, ये सब चीजें अभी नहीं समझ आई। सर मतलब सर किस देखो फायदा प्रोग्राम में हुआ ना, यूज कर सकते हैं, तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा। ओके ठीक है। स्ट्रक्चर जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब वहां पर मेमोरी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करके दिखाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर्स जब करेंगे ना अभी नेक्स्ट यूनिट के अंदर, तो वहां पे स्ट्रक्चर जो हम किस तरह से डायनेमिकली एलोकेट करते हैं मेमोरी उसमें दिखाएंगे। ओके सर। ओके और खासकर जो है पूरा का पूरा चैप्टर जो आपका लिंक लिस्ट का है ना, वो सारा का सारा इसी पे डिपेंड है, पूरा का पूरा चैप्टर किस तरह से लिंक पॉइंटर्स बनते हैं। और देखो लिंक लिस्ट जो पहला आपका डेटा स्ट्रक्चर नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, वो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स पे और मेलो तो इन दोनों पे ही बेस है, बाकी पूरा पूरा चैप्टर फिनिश है उसको, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बताया। देखो अब देखो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, बोथ आर सेम है, दोनों का लगभग सेम है, बट इन केस ऑफ द मेलोक में क्या होता है, the bytes that we have reserved will take a random garbage values during the memory creation, but in case of calloc it will assign to 0। समझ में आ गया, जो भी मेमोरी जो आएगी उसको जीरोज आएगा, गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी। मेलोक के केस में गार्बेज वैल्यू आती है और इसी केस में क्या आती है, जीरोस। यस सर। तो समझ में आ अगर गया? इसका मतलब सर अगर मैं स्टार पीटीआर तो प्रिंट करवाऊंगा कैलॉग में तो वो 0 वैल्यू दे देगा। हाँ यस, कैलोक से मेमोरी एलोकेट करके देखो और वहां पे उसमें से मेमोरी वैल्यू निकाल के दिखाओ, देखो वहां पे 0 होना चाहिए। ओके सर। ओके यस सर। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे यहाँ पे, देखो ये आपका बहुत यूज होने वाला है, ये वाला स्ट्रक्चर ना आगे जाके, इसको देख लो एक बारी।
वो दोनों ही केसेस में both malloc and calloc will give you space in the contiguous memory location. Okay, fine. If the contiguous locations are not available, it will return a null pointer. जब भी आपने डिमांड करी कि सर मुझे जो है 2 बाइट्स दे दो, और ये कहां पे जाएगा बेटा? सिस्टम कॉल के पास. यस और नो? सिस्टम कॉल ने आपको रिटर्न करी 2 बाइट्स, लेकिन 2 बाइट्स कैसे रिटर्न करी है? एक तो ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन नहीं है आपके पास. स्पेसेस जो आपको मिले कॉन्टिग्यूअस नहीं है, मीनिंग यहाँ पे 100 है, ये अब दूसरा स्पेस आपको 101 पे नहीं मिल रहा है, ये आपको कहीं जाके 500 में मिल रहा है. तो इस वाले केस में बेटा अगर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन आपको नहीं होती है ना, तो आपको हमें क्या मिलता है? नल पॉइंटर रिटर्न होता है. सिस्टम कॉल हमें क्या पॉइंट करेगी? नल पॉइंटर, मीनिंग आपको एक कोई भी मेमोरी एलोकेट हुई ही नहीं है. बात समझ में आ रही है? सर ये सर जो अभी रैंडमली होता है क्या, कि कभी भी कंटिन्यूअस हो जाती है लोकेशन, कभी भी नॉन कंटिन्यूअस? नहीं बेटा, कॉन्टिग्यूअस नॉन कॉन्टिग्यूअस नहीं है. हम ये बोल रहे हैं आपने डिमांड करी और आपकी मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ. आपकी मेमोरी एलोकेशन क्यों नहीं हुआ होगा बताओ? आपकी मेमोरी एलोकेशन इसलिए नहीं हुआ कि सिस्टम कॉल के पास गई होगी, सिस्टम कॉल ने बोला होगा भैया जो आप डिमांड कर रहे हो हमारे पास तो है नहीं इस तरह की मेमोरी. तो सिस्टम क्या कहेगा कि एक नल पॉइंटर आपको रिटर्न कर देगा कि मेरे पास इस तरह की कोई एड्रेस है ही नहीं जिसमें इतनी मेमोरी मेरे पास अवेलेबल हो. सर तो सिस्टम दोबारा बंच नहीं ले आया था सिस्टम कॉल करते हैं? बंच देखो, 2 चीजें. बंच तो तब लेके आएगा जब सिस्टम के पास मेमोरी हो. जब सिस्टम के पास मेमोरी Yes. नहीं है, आप बोल रहे हो कि सर Okay, मेमोरी sir. दे दो. अरे भाई कैसे, उसके पास है ही नहीं, तो क्या कुछ तो रिटर्न करेगा ना. Okay. कॉल तो हो चुकी है सिस्टम की, तो सिस्टम कॉल तो हमेशा रिटर्न करता है. क्या रिटर्न करता है सर? पॉइंटर रिटर्न करता है. वो पॉइंटर किस टाइप का करेगा? कहीं ऐसा पॉइंटर जो कहीं भी पॉइंट ना कर रहा हो, इसको क्या बोलते हैं? नल पॉइंटर. यस. Yes, यस sir. सर. यस सर. जब भी आप एलोकेशन करोगे मेमोरी का, सबसे पहले आप कंपैरिजन करके चला करो. अगर आपका कैलोक फंक्शन लिखने के बाद अगर आई के अंदर, मीनिंग जो भी पॉइंटर रिटर्न हुआ है उसके अंदर अगर नल वैल्यू आई है आपके पास, इसका मतलब मेमोरी बनी ही नहीं है. प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर आप क्या दोगे? नो मेमोरी इज एलोकेटेड. बनी ही नहीं है. प्ले कैसे करोगे मेमोरी से? ये चेक हमेशा लगाओगे. दिस इज चेक पॉइंट. यस और नो? सर ये आई इक्वल्स टू नल, आई यहाँ पे क्या है सर, फिर से बताएंगे तो? ऐसे कर दो ना. ओके सर, समझ गया. ठीक है, समझ में आ गया? यस सर. यस और सर. आई क्या हुआ? यहाँ पे पॉइंटर एड्रेस रिटर्न करना था. सर यहाँ पे कुछ निकल के नहीं आया सर, नल दिया है इसने. इस पर जब ये पूरा फंक्शन चला तो इसने नल वैल्यू दी है सर. इसका मतलब क्या है? मेमोरी मुझे मिली ही नहीं है. तो अब सबसे पहले आगे तो हम चेक तब करेंगे, तब पहले हम इस पर्टिकुलर चेक पॉइंट को क्रॉस कर जाए. ओके. यस सर. यस सर सर. तो ये नल हमेशा ऐसे ही लिखना होता है, ये मतलब जैसे लिखा हुआ है? कितना होता है? NULL कैपिटल के अंदर लिख दो इसको. ओके सर. कभी कभी हम इसको बैकस्लैश 0 से भी डिनोट कर देते हैं. बैकस्लैश 0 भी लिख देते हैं, लेकिन नल एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हमारी, तो NULL लिखते हैं. ओके. ओके सर. कैपिटल में ही. अब टाइप थर्ड देख लो, इसको आज यूज करते हैं. इसको टाइप थर्ड क्या है हमारा? रीएलोकेशन. अब आप बोलते हो कि सर कभी कभी मुझे जो है मेमोरी का साइज जो है रीएलोकेट करना पड़ता है. जैसे एग्जांपल समझते हैं. इफ यू विश टू ग्रो द एग्जिस्टिंग मेमोरी साइज, सपोज यू क्रिएटेड 4 बाइट्स. आपने पहले 4 बाइट डिमांड करी थी इस तरह से. ये डिमांड होगी आपकी. यस. यस सर. अब आप बोलते हो कि सर थोड़ा मेमोरी साइज बढ़ सकता है क्या? कैसे? नाउ यू विश टू ग्रो द साइज टू 6 बाइट्स. So you just need to send starting address of the 4 byte space, which is now in X, along with the new byte space you want. दोबारा रीड करो इसको. देखो, 2 सिनेरियो क्रिएट करें इसके लिए. सर एक बार फिर से RLOC की कॉलिंग दिखाएंगे?
आर लॉग की क्या है, पॉइंटर भेज रहे हैं, यहाँ पे पॉइंटर मिलिंग कोई एड्रेस है, साइज भेज रहे हैं, जितने साइज की डिमांड है हमारी, ठीक है, वो साइज भेजा हमने यहाँ पे, देखो क्या हुआ होगा। लास्ट समझ में, उसके बाद फिनिश करेंगे यार, वो लंबी हो गई क्लास काफी। सर रियल लॉक वाला सर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं सर प्लीज? सर लंच टाइम है सर, 20 मिनट बाद हमारी फिर से क्लास। ओके बेटा, मेरा भी लंच टाइम है, तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया आज ना, कोई बात नहीं। इसके बाद आपको मैं एक अच्छी प्रॉब्लम बताऊंगा, मेमोरी लीक प्रॉब्लम, जो आपकी जो है इसी के अंदर कवर हो जाएगी जब हम फ्री स्पेसेस के बारे में बात करते हैं। और फिर हम जो है बात करेंगे किसके बारे में बेटा, उसके बारे में हम, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। नेक्स्ट आपके लिए अवेलेबिलिटी जो होगी, ओके, दैट इज अबाउट द, इसके बाद हम ये सब कुछ फिनिश कर चुके होंगे, स्ट्रक्चर। और फिर हमारे पास होगा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद जो है लगभग आपका जो है एक टॉपिक रह जाएगा, दैट इज अबाउट द फाइल हैंडलिंग। बड़ा इजी है, उसमें कुछ सिंटेक्स वगैरह है वो फॉलो करने हैं। ये हम स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये आपका बेस होगा डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। ओके ओके यस सर। सर। थैंक यू सर। यस सर। ओके नाउ सर हमारी मिनट्स चेक हो गई? हाँ बेटा, अभी देखो कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन। हाँ